Good morning, children. So today we will discuss our remaining two important topics of this chapter, legislature, chapter 5. As you know that we already discussed our the types of bills, introduction of the bills, how the bills are introduced, what is the procedure which is followed. We already done and discussed thoroughly. And it is not very difficult to understand because everything is very clearly given in our textbook, and also we discuss all the aspects of the topic very thoroughly. So today we will discuss these two topics. We already done that the legislature, functions of legislature, then types of bill, the difference between the financial bill and the ordinary bill, what is the procedure of introducing the bill, how the president assent is very necessary, and not only president assent but both the houses assent is very necessary to become a law. All these we discussed thoroughly. So today is that first question. In our previous class, we already discussed, but today we will recapitalize. What do the committees of parliament do? Now the question here, what is the committee? Committee in the committee. For the specific work, for the specific subject, the committees are formed. And I also told you that in India, there are committees which are just performing the different subjects, different related subjects, and the members of these committees, they are just not elected, but they are nominated by Rajya Sabha and Lok Sabha. In this, these committees are given to particular work. Like we know that financial work are there, some education related, healthcare related. So all types of different work as related to the people as well as for the government. These committees they perform their work. So here, what do the committees of parliament do? The parliament committees are there. मीन्स यानी पार्लियामेंट्री कमेटी जो क्या करती हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड काम करती है पार्लियामेंट क्यों नहीं करता अपना काम यस पार्लियामेंट ऑल्सो डू इट्स वर्क बट यू नो दैट पार्लियामेंट वर्क इज ऑल्सो that is confined to the time bounding. I should say that it is time bounding also. कि जब सेशन होता है तभी पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा का सेशन होता है तभी कुछ मैटर्स डिस्कस होते हैं otherwise they can call a special session also बुला सकते हैं but you know that in the parliament you know that Lok Sabha Rajya Sabha they have enormous work and whenever the queries whenever the demands they can that they come from the different ministers they come from the different states in that sense it require a study that and you know whenever the work is distributed one work is given to you in the class. If I distributed the work to each and every student of the class, that will the results will be the wonderful because the efficiency will be increased. The proper work distribution is there. So in this way, whatever the work is done by them, it will be wonderful. So that's why these committees also their particular work is given to them. They just give their time, also devotion, hard work. The members they also indulge in every time all the aspects of the matter. So in this way, the committees they perform a very important role. So that's why the parliament require all types of committees. In our previous class, I already gave you the example like the committee of drafting committee, like the different state relation committee, minority committees were there, number of committees were there. We also discussed in our the what constitution or why constitution. So in this way, these parliament committees they are also very important. They are just we can say they are assisting the work of parliament members because number of you know that in to govern a nation to govern a country number of challenges it was faced by the members of the parliament related to the state minister related to the another ministers also not only of all that but also the common people aspirations and goals. So I think now you come to understand why we require committees. So in this we will discuss like two committees here, standing committee and joint committee. These committees, I just told you that they play a very significant role in this standing committee. It is a supervising committee. ये हमारे देश की सुपरवाइजिंग कमेटी है जो क्या सुपरवाइज करती है कि आपको मालूम है
कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं, वो टाइम टू टाइम जो है फिनेंसेस हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। करप्शन भी होते हैं, आपको मालूम है, करप्शन आर ऑल्सो वेरी कॉमन फिनोमेना इन इंडिया, देखने को मिलता ही है। तो हर डिपार्टमेंट में कुछ कुछ जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इंक्वायर करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो ये कमिटी है। तो जिसमें से जो स्टैंडिंग कमिटी है, इट इज स्पेशली फॉर द सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो रिलेटेड टू देयर बजट, कि वो उनका बजट क्या कहता है, क्या क्या उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है, एंड देयर दे विल देयर एक्सपेंडिचर ऑल्सो, कहाँ कहाँ वो उसको खर्च करेंगे, कैसे करेंगे। कोई उसमें ऐसा तो नहीं है कि जिसका अप्रूवल नहीं हुआ है उन्होंने उसको उसमें इंक्लूड कर लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जॉइंट जो है स्टैंडिंग कमेटी जो है वो सारा सुपरवाइज करती है। ठीक है, रिलेटेड टू द बजट एक्सपेंडिचर है, कोई और कोई इससे कोई नया इंट्रोड्यूस होना है बजट में, कोई तो खर्चा वगैरह है इस तरह से रिलेटेड, और दीज आर सुपरवाइज द स्टैंडिंग कमिटी। One more thing is very important. In your textbook, only 2-3 lines are given for the two committees are there. You also need deep knowledge. You should have deep knowledge of these another committees also, and their uh, that is the function which are performed by these committees. This is very important that you should read thoroughly about these committees. Now here joint parliament committee is also there. This is very important committee, and the members of this committee, they are also nominated by both the houses. What is the major function that is played by the joint parliament committees? That is, especially it is appointed for the discussing a particular bill. नहीं कोई ऐसा इशू है जिसको जो है उस कमिटी के अंदर डिबेट होना जरूरी है, डिस्कशन होना जरूरी है, तो वो सारा का सारा जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? दिस जॉइंट पार्टी। क्योंकि आप ये देखिए कि ये पहली स्टेज पे ही इतना थॉरली डिस्कशन हो गया जिस चीज का, ठीक है, जिस चीज का थॉरली डिस्कशन हुआ तो उसको बाद में तो समअप ही करना होता है उसको। तो पार्लियामेंट क्या करती है कि ये सारा जो डिफरेंट कमिटीज है, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग देयर वर्क, तो वो अपनी जो भी स्टडी जो भी उन्होंने डीप स्टडी किया है उसको पार्लियामेंट के सामने लाती है। अब पार्लियामेंट के पास है कि ये उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये डिफरेंट कमिटीज, नंबर ऑफ कमिटीज आर देयर, दे परफॉर्म देयर डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, पूरा ज्वाइंट पार्लियामेंट जो है कमेटी वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। क्या इन्वेस्टिगेशन कि कोई बिल जो इशू आया उसकी इरेगुलरिटीज भी चेक कर सकती है, कोई करप्शन तो नहीं हुआ, कोई फाइनेंशियल सोर्सेज का गलत तरीके से भी यूज नहीं हुआ। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर। देखो सीधी सी बात है कि whenever we try to or we are ready to work on something, different aspects are in front of us. We have to deal with individually in a different manner. Same thing is there. तो उस चीज को इस तरह से अपन में बहुत इजी, अगर हम इस चीज को करके पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा ना। क्वेश्चन अराइजेस कि कमिटी जो भी अपनी स्टडी देती है या जो भी अपनी रिपोर्ट देती है पार्लियामेंट को, क्या पार्लियामेंट उसका एज एक्सेप्ट कर लेता है? तो मोस्टली क्या होता है कि करता है। उसका रीजन क्या होता है कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस टैलेंटेड पर्सन, प्लस हर चीज को उन्होंने डेप्थ से इस चीज को समझा था, उसकी स्टडी उस हिसाब से दी। तो लेकिन एक चीज रहती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि दैट कमिटीज आर मोर पावरफुल देन द पार्लियामेंट। तो but on the other hand we know that parliament session is very necessary to become a law. एक बिल को पास होने के लिए क्या जरूरी है? पार्लियामेंट सेशन, बोथ हाउसेज असेंट इज वेरी नेसेसरी। So we can understand that side by side the very initial, we can say that drafting जो चीज है, किसी भी चीज का ड्राफ्ट तैयार होता है ना बिल का, तो उसके अंदर इन कमिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट तो अपने आप में है ही पावरफुल, सारी पावर्स ही हमारे पार्लियामेंट के पास है, बिना इनके एसेंस के तो कुछ नहीं हो ही नहीं सकता कोई बिल। बट अल्टीमेटली वी सी कि हम क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है, बट मोस्टली क्या होता है कि ये जो कमिटीज अपनी सिफारिशें देती है, रिकमेंडेशन देती है, अपनी रिपोर्ट देती है, उनको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया। सेकंड हमारा टॉपिक है हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। रेगुलेट का मतलब क्या होता है
रेगुलेट का मतलब यह है द पार्लियामेंट शुड हैव कंट्रोलिंग पावर टू फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द सेशन, कि जो काम हो रहा है वो स्मूथली हो, ठीक है। और वो कैसे हो, ये क्वेश्चन है कि हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट, क्यों रेगुलेट होना जरूरी है। चलो रेगुलेट तो समझ में आ रहा है कि रेगुलेट करना क्या होता है। रेगुलेट का मतलब होता है टू कंट्रोल एज वेल एज टू जस्ट मेंटेन द स्पीड ऑफ द एनी एनी वर्क और एनी इंस्टीट्यूशन वर्क, किसी मशीन का भी वर्क हो सकता है। रेगुलेट जो है उस रिलेटेड उससे ही रेगुलेटर, जिसको हम एज जिसमें हम फैन में रेगुलेटर हम यूज करते हैं, गैस सिलेंडर में रेगुलेटर यूज करते हैं, सेम वही है। तो ये स्पीड को और उनको रखना, तो यहाँ पर पार्लियामेंट की वर्किंग स्पीड से मतलब है पार्लियामेंट की वर्किंग प्रोसीड्यूर, ठीक है। अब हमें ये रेगुलेट समझ में आया। अब हमारे को क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है। चलिए पहले हम इस चीज को समझ लेते कि क्यों करना जरूरी है। तो उसका रीजन क्या है, आपको मालूम है पार्लियामेंट क्या है, एक डिबेटिंग फॉर्म है। पार्लियामेंट के पास कोई भी अगर बिल आता है, उस बिल को डिस्कस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक थॉरली डिस्कशन होगा। members are there, opposition parties are there, ruling parties members are there, ministers are there। तो हमें वो प्रोसीड्यूर मालूम, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, ये सारी चीजें इट्स नेसेसरी ऑल्सो। ऑलवेज आई एग्री विद ऑल दीज, द आर्गुमेंट्स आर वेरी नेसेसरी, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर व्हाट, for the better outcome of the any policy of the government. This is very necessary. But on the other hand, sometimes we see that the members or other opposition party members, they try to just create an obstacle or problem for the parliament. For what? कि वो काम होने ही नहीं देते। कई बार आप लोगों ने न्यूज चैनल से सुना होगा कि आपको पता है मानसून सत्र होता है ना। मानसून सत्र क्या होता है, जैसे इसमें मानसून जब है उसका सेशन होता है, समर सेशन होता है, विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का। तो न्यूज चैनल में सुनने में आपको आता है कि मानसून सत्र को इस बार जो है वॉकआउट में या शोर शराबे में या डिस्कशन में ही उसकी बलि पड़ गई। तो कहने का मतलब वो टाइम पीरियड कितना जरूरी होता है, आप समझ सकते हैं। उस टाइम पीरियड की इम्पोर्टेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितना ये पेंडिंग बिल वगैरह होते हैं उन सबका डिस्कशन कहाँ होगा, इन सेशंस में होगा। और अगर उस सेशन पे काम ही नहीं होने दिया जाए और उसको ऐसे ही फालतू वेस्ट कर दिया जाए, तो फिर इन द सेंस कि हमारी जो कंट्री की डेवलपमेंट पॉलिसीज है और द वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द पीपल, कौन उसको हैंडल करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। So why it is necessary to regulate? Now we come to understand that regulation of parliament is also very necessary. That's why the session which is going to be organized, the session which is called there, for what purposes? For just making or discussing on the policies for the welfare of the people. So it's very necessary. The next topic of this that we understand that parliament is a debating form. I told you that discussion is very necessary, everything is very necessary. But what we see there, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि एक पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपको ये चीजें कॉमन मिल जाएगी। क्या मिलेगी कि लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगते हैं, पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। कई बार इतना शोर करते हैं कि कुछ सुनाई नहीं देता है। कई बार क्या होता है कि बीच में जो सेंटर प्लेस होता है वहां आके इकट्ठा हो जाते हैं, शोर करने लगते हैं, ठीक है। बहुत बुरी बुरी स्थितियां भी होती है, कई जगह तो मारपीट भी देखने में, एंड स्पेशली जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह होती है ना, उनमें तो बहुत ही खराब मामला होता है कि एक दूसरे को मारपीट भी हो जाती है, ठीक है। और मतलब अपसर्ट लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पर इतना नहीं होगा। अगर हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की, यहाँ पर नहीं, बट इनमें जो विधानसभा विधान परिषद में जो है ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, हमने क्या कहा था, लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर इज नॉट ओनली द लॉ मेकिंग बॉडी, इसके अलावा क्या है, यहाँ पर वॉकआउट है, धरना जो है, ये सारी चीजें भी। तो अब ये बात है कि अगर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, तो क्या कोई ऐसा एजेंसी या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके इन सब चीजों को और स्मूथली ये चीजें चलने दे। पार्लियामेंट का जो अगर सेशन है जिससे बुलाया गया है, दैट शुड बी जस्ट रन स्मूथली, होना तो यही चाहिए ना। बट व्हाट हैपेंस देयर, बिकॉज इट्स
very common also. If different people they gather there and ask to give their ideas on particular matter or particular issue, so we are all intelligent people, experienced people who will give our idea and experience and thoughts there. So some are very they will favor us, some will not. So at that time the discussion, debates and high voice is very heated. The we can say the parliament is very common phenomenon. बट कहते हैं ना हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिटेशन इज वेरी नेसेसरी देयर। जहां पर लिमिटेशन नहीं है वहां पर क्या होगा, वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, इट रिक्वायर्ड कि जो पार्लियामेंट है उसमें जो भी मीटिंग वगैरह सेशन वगैरह होता है उसको रेगुलेट कौन करेगा, यहाँ पे द क्वेश्चन। तो कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है आपसे, class 11 who is the present presiding officer of Lok Sabha, please raise your hand. नरेश आयला, लेकिन वो बहुत कम था, अभी भी थोड़ा कम ही दे रखा है। पीयूष कुछ कहना चाह रहा है? क्वेश्चन का आंसर ये है कि पार्लियामेंट को रेगुलेट करने का तरीका ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दे कैन कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो इस तरह की कोई ऐसी हरकतें करते हैं पार्लियामेंट में, अगर जो हमें लगता है कि एक पब्लिकली गलत है, बिकॉज वी एवरीबडी नो कि सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, हम सब जानते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव जिनमें हमने फेथ सिखाया है वो पार्लियामेंट के सामने अपनी एक ऐसी जो कहा जाए कि पिक्चर सामने रख रहे हैं जो कि निंदनीय है, जो कि क्रिटिसाइजेशन के लायक है। लोग सोचेंगे हमने किनको चुना है। तो दैट्स व्हाई दैट इज सिस्टम की प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर है उसके पास पावर है कि उसको मेंबर को जो है पार्लियामेंट से बाहर भी कर सकती है। ठीक है, बाहर इन द सेंस ऐसा नहीं कि मेंबरशिप खत्म कर देंगे। अगर उसने देखो हर चीज के नॉर्म्स हैं, आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं कि अगर ये स्टेप, उसने बहुत क्लियरली चीजें दी हुई है कि किस किस बेस पर या कब कब कौन सी सिचुएशन पर जो है क्या स्टेप लेना है। तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस सिचुएशन में उस मेंबर को वहां से जिसको रेस्ट्रिकेट करना कह सकते हैं 3-4 दिन के लिए या एक सेशन के लिए उस मेंबर को रेस्ट्रिकेट कर सकते, एक तरीका ये। फिर हमने क्या है हमारे इंडिया में यहाँ पर पार्टी चेंज का सिस्टम बहुत ज्यादा है। पार्टी चेंज इन द सेंस कि आप एक पार्टी में हैं, फिर आपने उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसलिए क्लास 10th में आपने पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस पढ़े, उसमें मीनिंगफुल चॉइस थी। रिकॉल करना, मीनिंगफुल चॉइस थी। उसमें क्या था कि पब्लिक के पास तो कोई चॉइस ही नहीं होती। कैसे, एक तो एजेंडा सेम होता है, हमने कांग्रेस का एजेंडा देख लिया, बीजेपी का एजेंडा देख लिया, और प्लस कैंडिडेट भी वही होते, बस पार्टी चेंज कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास चॉइस नहीं होती। तो सेम यही बात मैं यही कहने जा रही हूँ। 10th क्लास में डिफेक्शन पढ़ा था आपने, डिफेक्शन कि जहां पर द कैंडिडेट और द इलेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर इलेक्टिंग दे चेंज द पार्टी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये जो सिस्टम था, एक आपको इंस्टेंस बताती हूँ, हरियाणा में तो ऐसा हुआ था एक बार 1985 से पहले कि एक विधायक ने, एक एमएलए ने 3 बार एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज कर ली। तो आप लोगों ने वो वर्ड सुना होगा, आया रंग गया रंग, कब से ही हुआ, एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज। तो राजीव गांधी जी के टाइम में 1985 में जब ये बहुत सारे जो पार्टी मेंबर्स थे, लेजिस्लेटर्स थे, उन्होंने एक अपना एक मत बनाया, जो कह सकते हैं किसी चीज से वो एग्री हुए सेम चीज पर। उन्होंने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ बनना चाहिए। मतलब डिफेक्शन जो पार्टी चेंज करने वाला सिस्टम है उस पर कुछ कानून बनना जरूरी है, टू कर्ब दिस पावर दैट इज एंजॉयड बाय द मेंबर। और उसको रोकने के लिए 52nd जो है अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के बहुत सारे
पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कब कब अगर आप इस तरह से आफ्टर इलेक्टिंग अगर कुछ पार्टी, देखो हर चीज बहुत डीप है ये वाला, ये जो टॉपिक है ये बहुत डीप है। इसमें ये है कि अगर नंबर ऑफ कि कितने कैंडिडेट जो है पार्टी चेंज करना चाहते हैं तो उनकी जो है मेंबरशिप खत्म नहीं होगी, ठीक है। अगर एक मेंबर करता है तो किस कंडीशन में उसकी मेंबरशिप खत्म होगी, दीज आर ऑल रिटन इन आर्टिकल्स एंड प्रोविंसेस। तो व्हाट इज द रोल इन दिस कि अगर हम ये बात करें कि 1985 के बाद क्या डिफेक्शन रुक गया, डिफेक्शन नहीं रुका, बिकॉज सम अनदर प्रोविजंस आर आल्सो देयर जहां पर रिलैक्सेशन है। हाफ ऑफ द लेजिस्लेटर्स दे वांट टू चेंज देयर पार्टी, मेंबरशिप खत्म नहीं कर सकते। एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज होने जाती है, मेंबरशिप खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है। प्लस अगर दो पार्टी अगर मर्ज हो रही है लेकिन उसमें से कुछ मेंबर नहीं मर्ज होना चाहते तो सेपरेट पार्टी बना सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोविजंस आर देयर। और 91 में जो है अमेंडमेंट, इसमें तो और इसको मॉडिफाई कर दिया गया, मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि इसको और पावरफुल बनाया गया ताकि जो डिफेक्शन है उसको रोका जा सके, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको प्रोविजंस बताया ना, ये प्रोविजंस होते ही वो चीज खत्म हो जाती है, आप उन पे कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में नहीं हो सकता। दूसरी चीज और बताती हूँ मैं आपको, अभी जो हुआ था कांग्रेस वाला, सचिन पायलट का उदाहरण देती हूँ। अभी इसमें क्या हुआ था कि सचिन पायलट, हमने कहा कि लोग कांग्रेस जो कि अशोक गहलोत पार्टी थी उसमें से कुछ विधायक जो थे वो एमएलए जो थे वो सचिन पायलट के साथ थे। अब हमें ये देखना है कि कांग्रेस के कितने विधायक टोटल, तो उसमें से कितने गए। जैसे हमने कहा विधायक ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास थे, यानी इतने विधायक जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहते थे। तो मुझे बताइए कि क्या सचिन पायलट और दूसरे विधायक आया था कि इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वो प्रोविजन है कि इतने मेंबर्स अगर जाते हैं, इतने अगर ऐसा होता है तो नहीं हो सकता। तो दिस इज द वन वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें रोल आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कि जितने भी एंटी डिफेक्शन जितने भी डिसीजन लेने हैं वो विल टेक कि किसी की मेंबरशिप खत्म करनी है तो किसके हाथ में है, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द मेंबरशिप एनी मेंबर, और किसके हाथ में है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में, स्पीकर के हाथ में है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी बहुत डिबेट हुआ कि क्या एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया और उस मेंबर को क्या बेस है, उसका बेस ये है, डिफेक्शन क्या है इन द सेंस कि अगर किसी पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मेंबर्स को कह दिया कि आप पार्लियामेंट में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट नहीं रहता। अगर दूसरी बार उसको ये कहा कि आप वोट इन फेवर करें, लेकिन वो फेवर में नहीं देता। तीसरा, उसको अपनी इच्छा से वो पार्टी छोड़ देता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है इन दी सर्कमस्टेंसेस। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर फाइंड आउट होता है कि वो डिफेक्टेड है तो खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन अब ये आ रहा है कि क्या ऐसा सिस्टम है कि जो लास्ट जो कह दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिस इज द लास्ट डिसीजन, क्या इसको जो है क्लेम नहीं किया जा सकता, दिस इज ग्रांटेड। तो उसमें क्या हुआ है कि आर्टिकल जो है 1980 ये अपने अमेंडमेंट के बाद 10th जो अनुसूची जिसको हम बोलते हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, 1991 में हुआ था, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर स्पीकर किसी की उसको मेंबरशिप को कम मतलब खत्म करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्लेम किया सकता है कोर्ट में, इन्वेस्टिगेशन पर्पजेस कि भाई जो हुआ क्या वो सही था या नहीं था। पहले तो यही था कि पूरा डिसीजन कौन ले सकता है, यही ले सकता है। तो इन द सेंस कि हमने ये देखा कि लेजिस्लेचर में एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था एंटी डिफेक्शन वाला। आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज थॉरली रीड दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत अच्छा आप अपना आंसर लिख सकते हो इसके अंदर। जो मेजर चीज थी मैंने आपको एक्सप्लेन करी आपके साथ। अब मेन ओवरऑल हम कंक्लूजन क्या देख रहे हैं इस चैप्टर का, सम अप करके देखें तो ड्रॉबैक हर सिस्टम में, ड्रॉबैक मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर ऑलवेज देयर एंड दीज आर वेरी नेसेसरी ऑल्सो। डिमेरिट्स नहीं होगी तो हम उससे काम कैसे करेंगे? अगर किसी व्यक्ति में कमी नहीं है तो उस कमियों को दूर कैसे किया है? नोबडी इज परफेक्ट हियर, नो इंस्टीट्यूशन इज परफेक्ट, नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट, every each and every we
कैन से कि कंट्री के अंदर जो भी चीजें उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है। तो लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो इसके अंदर जो सिस्टम है, दिस इज एम्पावर्ड सिस्टम एंड दिस एम्पावरमेंट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर व्हाट पर्पजेज, लेजिस्लेचर को क्यों इतना पावरफुल बनाया गया है? वी कम टू नो दैट लेजिस्लेचर इज पावरफुल। कहीं पर हमने देखा कि पावर लेस भी है, कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। तो पैरेलल चीजें चलती हैं, जहां पर हम एग्जीक्यूटिव की पावर को कैसे कर्व करना है लेजिस्लेचर में, वो सारा हमने देखा कि लेजिस्लेचर है क्या, पार्लियामेंट कैसे है, क्या पार्लियामेंट में कानून नहीं बनता है। इंडिया के अंदर हम रिकैप्सुलाइज कर रहे थे चैप्टर को, क्या इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो बायकैमरल सिस्टम क्यों है? व्हाट इज बायकैमरल सिस्टम? बायकैमरल सिस्टम क्यों है? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द लोकसभा, जिसमें हमने पावर्स के अंदर स्पेशल पावर्स की बात, देखो दोनों की कुछ सिमिलर पावर्स थी, अमेंडिंग द बिल है ना, जिसमें अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इनसे रिलेटेड, ठीक है। और कुछ स्पेशल पावर दीज आर एंजॉयड बाय राज्यसभा एज वेल एज बाय द लोकसभा। कौन सी? सारी मनी बिल रिलेटेड सारी पावर्स लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास हमने कहा यूपीएससी सर्विसेज है ना, वो सारी अगर वो बनाने की पावर है तो किसके पास है? राज्यसभा के पास है। अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा इमरजेंसी को जो है वो भी अप्रूव्ड करती है। तो कुछ स्पेशल पावर्स जो है वो राज्यसभा के पास हमने पाई। उसके बाद हमने बिल का एक प्रोसेस पढ़ा कि व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल, है ना। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? व्हाट इज मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, अमेंडमेंट बिल, ये सारी बिल्स को हमने डिस्कस किया। क्या प्रोसीड्यूर होता है, कैसे इसकी रीडिंग्स होती है, प्री रीडिंग्स होती है ना। उसके बाद मतलब 5 स्पेसिफिक स्टेजेस होती है, जिसमें रिपोर्ट कमेटी और रिपोर्ट स्टेज भी होती है। उसके बाद हमने सारा ये इनको देखने के बाद हमने आज ये 2 टॉपिक डिस्कस किए। तो आई होप कि चैप्टर समझ में आया होगा। लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हमने थॉरली डिस्कस किए। अब मुझे एक बात बताएं कि